नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आइए अब हम ये चोजन सीरीज की बात करते हैं। दी चोजन बाइबल के यीशु मसीह पर बनाई गई एक टीवी सीरीज है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें बहुत सारी जगहों पर बाइबल से अलग स्टोरी दिखाई गई है। कई एक्सपर्ट्स ने इसका विरोध किया है। Nothing has the power that the Word of God has. I think about that when I see this film, The Chosen. I guess I don't like that. I don't like that because some of it's biblical and some of it's not. And you can't make up the Bible story any way you want. Fidelity to the Bible is everything. जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें ये सीरीज देखना बहुत पसंद है, उनको कहना चाहूंगा कि सुनिए इस सीरीज को बनाने वाले डलास जेनकिंस का क्या कहना है। I'm making a show about Jesus where 95% of the content isn't from the Bible. Say something very quick before I talk about this specific scene. We're doing 56 episodes of this show, and most of the content of this show is not directly from Scripture. I know that sounds horrible, but it's true. If you watched episode 1 of season 1, almost none of that is from Scripture. If you watch episode 2 of season 2, none of it is from Scripture. Episode 3, none of it from Scripture. Episode 4, most of it not from Scripture. Therefore, it is a guarantee that we are going to disagree sometimes. You are not always going to agree with everything that I decide in my portrayal of Christ or of the followers of Jesus. That is a fact. यहाँ पर ये साफ साफ कह रहा है कि यीशु मसीह और उसके डिसाइपल्स के कैरेक्टर्स बाइबल के वचनों से मिलते नहीं है। ये इसके यानी डलास के इमेजिनेशन है। यानी ये सीरीज में दिखाए गए यीशु मसीह बाइबल के यीशु मसीह नहीं है। ये सीरीज में दिखाए गए शिष्य बाइबल से नहीं है। ये सब मॉर्मोनिज्म से लिए गए कैरेक्टर्स है। दी चोजन सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ब्रैड पेलो, जो कि एक मॉर्मन है, सुनिए ये क्या कहता है। So the mission of The Chosen is not to be scripture. Yeah. It's not to pretend that we know exactly what Jesus was like or what his friends were like. Simply to present him in the language, really, of a modern generation. ये भी साफ साफ कह रहा है कि दी चोजन में बाइबल का यीशु मसीह नहीं है और जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से ली गई है। इसमें जो भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो पहली नजर में बाइबल के कैरेक्टर से लगते हैं, लेकिन रियल में वो बाइबल से नहीं लिए गए हैं। बाइबल के यीशु मसीह और उसके डिसाइपल्स को एकदम गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बाइबल के वचनों को गलत तरीके से दिखाया गया है। बाइबल में नीति वचन 30:5 और 6 में लिखा है कि परमेश्वर का एक एक वचन परखा हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। जो आदमी जीसस बना हुआ है उसका नाम है जोनाथन रोमी। ये रोमन कैथोलिक है। जोनाथन रोमी को जब रोल ऑफर किया गया तब उसने क्या किया, आप उसके मुंह से ही सुने। Before I started work, I went over to Christ Cathedral and I sat by his grave and I prayed a rosary with him. I sat down and I prayed with him. The space just to his right is empty, so I got to sit down or lie. At one point I even lied down because I just thought it would be kind of interesting to try to connect in some way. And I said, Lonnie, I want to honor you with this film, and I really want to bring justice and you know, the testament to the gifts of God's grace and powers that you know displayed while you were on this earth. And so if this is a good idea that I do this film, have somebody give me a sign. Give me a sign. Have God give me a sign. Mm-hmm. And the minute the words left my mouth, behind me there was a door open to the cathedral, and this giant cord rang out for about 5 seconds, and then from the organ. From the organ. Wow! I heard that and I was like, okay, thanks for that. वो कह रहा है वो एक कब्र के पास जाकर बैठा और उस कब्र में दफन मुर्दे से पूछा कि मैं ये रोल करूं या न करूं, मुझे कोई साइन दो। और उसके कहने के मुताबिक पीछे से ऑर्गन बजने की आवाज सुनाई दी और उसे साइन मिल गया। उसने उस मुर्दे को थैंक यू कहा। इसने यीशु मसीह से सहायता मांगने की बजाय एक मुर्दे से सहायता मांगी, डीमंस से सहायता मांगी। वो जिस कब्र के पास बैठा था वो लोनी फ्रिस्बी की कब्र थी। जोनाथन रोमी इससे बहुत इंस्पायर्ड है। लोनी फ्रिस्बी लोगों को सुसमाचार सुनाता था, खासकर उसने हिप्पियों के बीच में काम किया। बाद में वो कोकेन का एडिक्ट हो गया और अपने होमोसेक्सुअल रिलेशन की वजह से बहुत बदनाम भी हुआ। जोनाथन रोमी ऐसे आदमी की कब्र पर जाकर उससे बात करता है और सहायता मांगता है। डलास जेनकिंस और जोनाथन रोमी दी चोजन के लिए पोप से भी मिले थे। दोस्तों यहाँ पर मैं कह दूं कि रोमन कैथोलिक्स का बाइबल और क्रिश्चियंस का बाइबल अलग अलग है। Protestant, but I am making a show for everyone who loves Jesus. People caught up in the Roman system are not saved Christians. They are lost people on their way to eternal hell.
we have to continue to evangelize them. आप चोजन सीरीज के कैरेक्टर्स को देखिए, ये कोई भी एंगल से आपको बाइबल के कैरेक्टर्स लगते हैं। यहाँ पर बाइबल को गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह को ये कहते दिखाया गया है कि मैं मोसेस का नियम हूँ। If you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. I am the law of Moses. दोस्तों, बाइबल में यीशु मसीह ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर ये गलत दिखाया जा रहा है। साइमन पीटर को जॉन द बैप्टिस्ट की मजाक उड़ाते दिखाया गया है। वो बार बार जॉन द बैप्टिस्ट को क्रीपी जॉन कह रहा है, यानी डरावना जॉन बैप्टिस्ट कह रहा है। I was standing next to John the Baptizer. Well, creepy John. Simon calls him Creepy John. Out of my sandals because Creepy John pointed at someone. Sounds like you're in a war out there with John the Baptizer. बाइबल में बताया गया है कि जॉन द बैप्टिस्ट परमेश्वर की दृष्टि में महान था। अपने जन्म काल से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। मैथ्यू 11 और 11 में लिखा है, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बड़ा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ। और इस सीरीज में जॉन द बैप्टिस्ट की बेइज्जती की जा रही है। साइमन पीटर को यहाँ पर लड़ने झगड़ने वाला दिखाया गया है, गैम्बलर दिखाया गया है। Before it was gambling, and now it's working. शराबी दिखाया गया है। Well, you merchants need twice the help at sea. I need twice the help on land. उसे व्यभिचारी भी दिखाया गया है। So trust me on this, please. You answer to God, not me. I haven't been honest with you. There's no woman. क्रिश्चियन बाइबल में साइमन पीटर के बारे में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर सब कुछ झूठा दिखाया जा रहा है। लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये मैथ्यू को देखिए कैसा दिखाया गया है। एक सीन में तो साइमन पीटर मैथ्यू को मारने के लिए आता है। दोस्तों, ये है चोजन की असलियत। ये लोग लोगों को गलत दिखा रहे हैं और लोग ऐसे शोज को चुपचाप देख रहे हैं। क्या यीशु मसीह के डिसाइपल्स ऐसे थे? क्या बाइबल में इनके लिए ऐसा लिखा गया है? ये सब इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। हो सकता है ये स्टोरीज कैथोलिक बाइबल से या बुक ऑफ मॉर्मन से ली गई हो। दी चोजन में दिखाया गया यीशु झूठा यीशु मसीह है। वो बाइबल का यीशु मसीह नहीं है। दी चोजन का मसीह मुर्दों की पूजा करने वाला है। इनके कैरेक्टर्स LGBT को सपोर्ट करने वाले हैं, मॉर्मोनिज्म को प्रमोट करने वाले हैं। जो लोग मॉर्मन के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि मॉर्मन एक रिलीजन है। इनका मानना है कि यीशु मसीह और ल्यूसीफर भाई भाई है। उनमें कुछ बातों को लेकर झगड़ा हुआ और ल्यूसीफर को जमीन पर फेंक दिया गया। ये लोग ये भी मानते हैं कि हर एक इंसान पैदाइश से ही संत होता है, खुद एक गॉड होता है। इनकी शिक्षा बाइबल से बहुत विपरीत है। मॉर्मोनिज्म के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो मैं उन पर अलग से वीडियो बना दूंगा। दी चोजन सीरीज मॉर्मोनिज्म और कैथोलिक के बाइबल पर आधारित टीवी सीरीज है, जिसको क्रिश्चियन टीवी सीरीज कहकर बाइबल के यीशु मसीह और उनके डिसाइपल्स को गलत दिखाया गया है। रोमन कैथोलिज्म और मॉर्मोनिज्म क्रिश्चियनिटी से बहुत अलग है। उनको क्रिश्चियनिटी में शामिल नहीं किया जा सकता। दी चोजन सीरीज के बारे में और भी कई सच्चाई है। अगर मैं सब एक वीडियो में शामिल करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इंसान का एक स्वभाव है कि हम जो देखते हैं और जो पढ़ते हैं उनमें से हम जो देखते हैं वो हमारे माइंड में तुरंत फिट हो जाता है। पढ़ा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन जो विजुअली देखा है उसे हम भूल नहीं सकते और वो हमें सच भी लगता है। ये जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। फॉल्स मसाया को दुनिया के सामने बाइबल का मसाया बोलकर दिखाया जा रहा है। बिब्लिकल डिसाइपल्स और इवेंट्स को अपने हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है। डलास जेनकिन ने अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से ये सीरीज बनाई है। लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, ऐसी सीरीज को बॉयकॉट करना चाहिए। बाइबल में 2 कोरिन्थी 2 और 17 में लिखा है कि क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप चोजन सीरीज देखते हैं? दी चोजन सीरीज और उसमें काम करने वाले एक्टर्स के बारे में आप क्या सोचते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।